Now, students, our next portion is operations on real numbers. As you know, students, in earlier classes, when you studied about the rational numbers, when in commutativity, associativity, and distributivity, these in all these laws for addition and multiplication, rational numbers are commutative and associative as well as distributive in addition and multiplication. And moreover, when we add, subtract, multiply, or divide two rational numbers, we get a rational number. But in case of irrational number, it is not true. Suppose root 5 plus minus root 5. These two are irrational numbers. When we add root 5 and minus root 5, we get 0. These two are irrational numbers, but if we add these two irrational numbers, we get a rational number. In the same way, when we subtract two irrational numbers, root 2 minus root 2, then we get an irrational number. And if we multiply, for example, root 7 into root 7, these two are irrational numbers, but if we multiply these two irrational numbers, we get a rational number. Then in the same way, if this one is the first part, second part, third part, and fourth part, when root 15 is divided by root 15, then we get a rational number. In the same way, if I divide root 8, an irrational number, by another irrational number by root 2, then we get root 4 as 2, which is rational. So, in cases of irrational numbers, the associativity, distributivity, laws of addition, multiplication, and subtraction and division, when we multiply, add, divide, subtract two irrational numbers, then it is not necessary that we get an irrational number. It may be a rational or an irrational. Okay, fine. Now further, some laws are there. The sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. Sum or difference of a rational and an irrational number is irrational. Now some other laws are there. For example, let A and B be positive real numbers, then
फर्स्ट रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, और सिंपली वी कैन से रूट ए डॉट रूट बी. Students, this dot show here multiplication. For example, 2 into 3 under the root will be equal to root 2 into root 3, और simply root 2 dot root 3. मैंने आपको बताया कि जो ये डॉट है ये आपके प्रोडक्ट को शो करता है, मल्टीप्लिकेशन को. सेकेंड, अंडर द रूट ए अपॉन बी मीन्स रूट ए अपॉन रूट बी. फॉर एग्जाम्पल रूट 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 7. नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, दिस इज वेरी सिमिलर एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. इट मीन्स रूट ए स्क्वेयर माइनस रूट बी स्क्वेयर, दैट इज स्क्वेयर से रूट कट गया तो ये आ गया ए माइनस बी. सो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी. रूट हट जाएगा. फोर्थ, अभी इसका एग्जाम्पल बाद में ले लेते हैं. देन अगेन रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये भी सेम है जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेते हैं, जैसे उसी तरीके से रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी, दैट इज स्क्वायर से रूट कट गया सो ए, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया प्लस बी प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी. आप इसको सेम रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 रूट ए इंटू बी. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर. दिस इज जस्ट लाइक a minus b whole square, x minus 5 whole square, so that will be equal to root a square, that will be equal to root a square means रूट कट जाएगा माइनस b सॉरी प्लस b माइनस 2 रूट a रूट b. नाउ सिक्स्थ वन, मान लीजिए ए पे रूट नहीं है एंड बी पे रूट है. ए प्लस रूट बी, दैट देन ए माइनस रूट बी, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फिर से वही सोचना है आपको कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट विल बी एक्स स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर माइनस रूट बी का स्क्वेयर, दैट विल बी ए स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर कट जाएगा माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे. और अनदर, जैसे आप नेक्स्ट रूल लेते हैं कि
रूट ए, चारों नंबर अलग अलग हैं, प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। इसको आप किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे पहले आप रूट ए का रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया यहाँ पे, रूट ए इंटू रूट सी सिंगल रूट में आ जाएंगे, रूट ए इंटू सी, बिकॉज ए और सी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, सो दोनों की प्रोडक्ट होके एक ही रूट में आ जाएगा ये। फिर रूट ए को आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई, रूट डी से, तो रूट ए इंटू रूट डी प्लस रूट ए इंटू डी। फिर आप रूट बी का रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट बी सी। फिर आप रूट बी का रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रूट बी डी। तो इस तरीके से आपको रूल्स आपको समझने हैं। एक रूल और बताते हैं, ये रूल है आपका 8th रूल। इसमें फर्स्ट पे रूट नहीं है, प्लस ए पे रूट नहीं है, बी पे रूट है, और उसका होल स्क्वायर देखते हैं। तो हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू रूट बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर करेंगे तो खाली बी आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू रूट बी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, और इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज के अंदर ही कि कैसे डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स के रैशनलाइजेशन होते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। एक्सरसाइज 1.5, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल्स में। सो फर्स्ट पार्ट 2 माइनस रूट 5। स्टूडेंट्स, आपको पता है एक रैशनल नंबर है 2 और दूसरा इरेशनल है, और बीच में आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो स्टूडेंट्स, जब एक रैशनल और एक इरेशनल आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है, तो ये है इरेशनल। सेकंड पार्ट, थ्री प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 से माइनस रूट 23 से प्लस रूट 23 कैंसिल हो गया, और इसका आंसर आया 3, विच इज़ रैशनल। नाउ इन नेक्स्ट पोर्शन, थर्ड पार्ट, टू रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है 2/7। आपको पता है 2/7 रैशनल नंबर है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑल्सो इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंटीजर।
and both are integers, so this is rational. Next, fourth, 1 upon root 2. Students, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर रूट 2 है. जब हम किसी रैशनल नंबर को किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये नंबर इर्रेशनल होता है. फिफ्थ, 2 पाई. स्टूडेंट्स, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, 2 इज़ रैशनल. जब हम किसी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है. तो हमने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है एंड विच नंबर इज़ इरेशनल एंड वाई एंड हाउ. सेकेंड क्वेश्चन. In second question, students, simplify each of the following expressions. First part, 3 plus root 3 and 2 plus root 2. So we need to simplify. Now स्टूडेंट्स, आप 3 को a मान लीजिए, रूट 3 को b, 2 को c एंड रूट 2 को d. थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ब्रैकेट कैसे ओपन होंगे. पहले आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इंटू 2 देन प्लस फिर 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये बन गया स्टूडेंट्स 3 रूट 2. फिर आप रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 2 रूट 3. फिर रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस रूट 3 इंटू रूट 2. तो स्टूडेंट्स, जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 3 रूट 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस 2 रूट 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस जब हम रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये रूट 6 आ जाएगा. तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होता है. तो इसका सॉल्यूशन है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6. नाउ नेक्स्ट पार्ट. थ्री प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b. सो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, दैट इज 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा और माइनस रूट से स्क्वेयर कट के ये 3 हो रह जाएगा. तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 9 minus 3 6. Now the third part. Root 5 plus root 2 whole square, that is we will see, consider this one as a plus this one as b, a plus b whole square. Then we will see a square प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. हमने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. तो ये आता है स्टूडेंट रूट 5, रूट से स्क्वेयर कट के 5 रह जाएगा, प्लस रूट से स्क्वेयर कट के 2 रह जाएगा, प्लस
2 इंटू √5 इंटू √2 √10 बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 + 2 7 + 2 √10 ये आंसर आ जाता है। फिर आपका फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, फिर से वही a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो क्या आ जाता है इसमें? इसमें आपका रूल बन जाता है a² √5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 रह गया, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 रह गया। 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। सो ये आपके सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज he is saying here in third question, the question is recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c upon d. Pi is equal to c upon d. Pi is the ratio of circumference of a circle and to the diameter of that circle. This seems to be contradict fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction, students? As we don't know in C and D, students, as we are not able to check that either C or D is irrational, so pi is an irrational number where pi is equal to c upon d is an approximate value. Next, fourth question, represent √9.3 on the number line, on the number line. So students, in this question you will have to take the ruler, you will have to use the ruler and geometrical instruments in this question. So we will discuss this question later on after some time.